Ma'am, GD Goenka Healthcare Academy Silchar degree diploma amadi certificate in paramedical course singi admission thajare. Hen aku pemarol khangbini basingna caption da pijariba mobile number asida call taruga tanabina bahijari. Mapam asi Silchar gi Nagatila point gi kharasangaga SN Swimming Club haina leiribasi asiga adum thangnana leire. अहानबदा महिरोइसिंगी फेलिसिटेशन प्रोग्राम अमा यिंगमिनसी मतुंगदा एकाडेमी असिगी कोर्स सिंगी मतंगदा ओजासिंगना हाइबदु तामिनसी तमन्ना यास्मीन बर्वी the best topper and our beloved senior Najika Begum Babu. Please give a big round of applause. She was the topper with 94.08%. Please give a big round of applause. Thank you everyone for part of this wonderful occasion. I would like to share my experience about this GD Goenka Healthcare University. I have joined here in 2024 March, and from there we have started a very good journey about learning very good lessons about healthcare sectors and how to treat patients, how to treat with people in good manners. And after our theory period, I have decided to go outside and have done my internship from Apollo Hospital, Noida. So there I had a very good experience there. I have experience about robotic surgery also. I have done I have also assisted in ENT, knee replacement, hip replacement surgeries. I have done many different surgeries there. And I would like you all to study very hard and do a very good career in this field, as this career is very good. And after going outside also I have learned that this career is very good for us. And if you can do further studies, like after diploma, if you can proceed to BSc and all, BSc in OT, then you will be then you can apply for government job. As in BSc, if you do the BSc, you will need less experience, and if you have done diploma and apply for government sectors, then you need more experience than BSc. So I will prefer you all to go for further studies like BSc. Yeah, and thank you. Myself अशराफुल हुसैन लस्कर, मैं GD गोएंका से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स किया हूँ। तो मैंने इंटर्नशिप किया है हमारे MD सर के हॉस्पिटल में, जो SN ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स है। और मैंने GD गोएंका में एडमिशन लिया था 2024 को 1 मार्च से मेरा थ्योरी स्टार्ट हुआ था। तो हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे और इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा था कि जो जिस तरीके का गाइडेंस आप लोगों को चाहिए सब मिलेगा, लेकिन आप लोगों को भी अच्छा होना पड़ेगा इसके लिए। छोटा मोटा कि ऐसा नहीं कोई वर्ड बोलो कि टीचर्स का भी इंसल्ट हो, वो भी कुछ बोले, तो ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है। तो आप लोगों को भी अच्छे से रहना है, वो भी अच्छे से गाइड करेंगे। आप लोगों को जो भी चाहिए उन लोगों को बोलो, वो लोग गाइड करेंगे, क्योंकि हम लोगों को मिला है, हम लोगों ने किया है। वो इंटर्नशिप अगर तुम हमारे सर के हॉस्पिटल से करो तो और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। वो लोग पूरे अच्छे से गाइड करते हैं कि वो मतलब ऐसे लगता है कि वो अपना ही हॉस्पिटल है, ऐसे गाइड करते हैं वो लोग। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छे है, हॉस्पिटल के भी स्टाफ बहुत अच्छे है। जो सीनियर्स है वो सीनियर्स नहीं लगते, तो ऐसे गाइड करते हैं कि वो फैमिली मेम्बर है हम लोगों का, ऐसे गाइड करते हैं सब। तो अच्छे से पढ़ाई करो और सब इंटर्नशिप भी करो अच्छे से। तो थैंक यू। I would like to thank all your parents also for their support and trust which they have bestowed upon us, and the faculty for guiding them throughout their journey. Whenever if you are in any need for guidance, not only till we have guided whatever we could during your study periods, but afterwards also if you need any help or any guidance, we are there to support you. I give Deepanjali Kawi. I said 2 years course Vivok MLT medical laboratory technician. I use 1 year theory di lore do handa hoje April lagi internship howdeba. Oja sing kita pi bagi mong sida kamai tawi academy sida. Oja sing yam phajan takpi koi knowledge to haide. Loksan bada yam line thoi
ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒ ꯇꯝꯃꯛꯄꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯣꯇꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯟꯍꯥ ꯀꯧꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯗꯥꯏꯂꯤꯁꯤꯁ ꯇꯦꯛꯅꯤꯁꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯐꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯥꯏꯂꯤꯁꯤꯁ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯤ ꯖꯤꯗꯤ ꯒꯣꯌꯟꯀꯥ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯥꯏꯂꯤꯁꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯅꯧꯅ 2025ꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯦꯁ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯔꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯁꯤꯖꯟ ꯍꯧꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯊꯪ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤ ꯂꯧꯅ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯅ UGC ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜꯅꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯅꯣꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯇꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ Myself Vishal C. Sharma. I am the teacher of radiology department at GD Goenka Healthcare Academy. तो बेसिकली GD गोयनका एक यूनिवर्सिटी है जिसका अंडर में बहुत सारा पैरामेडिकल कॉलेज प्रेजेंट है आई मीन ब्रांचेस। तो एक ब्रांचेस प्रेजेंट होता है हमारा शिलचर नागाटिला में, ठीक है, मतलब एसएन ऑर्थोपेडिक के सामने। तो पैरामेडिकल मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज होता है, जैसे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इसके बाद ओटी टेक्नीशियन, इसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन एवं लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और भी बहुत सारा कोर्सेज प्रेजेंट होता है। और पैरामेडिकल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मतलब कोई भी इंसान का बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको डायग्नोस डायरेक्टली डॉक्टर जो होता है ना उसको डायरेक्टली डायग्नोस नहीं कर पाते, तो उसके लिए कुछ टेस्ट करना पड़ता है। वो टेस्ट पैरामेडिक्स करता है, ठीक है। जैसे रेडियोलॉजी में एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI होता है, तो उसके थ्रू हमारा बॉडी के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है। तो ऐसे डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होता है। बेसिकली आप रेडियोलॉजी या डिफरेंट जो कोर्सेज होता है यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट पे डिप्लोमा एंड बीवोक दोनों ही अवेलेबल होता है। तो आप अगर डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हो तो डिप्लोमा 2 इयर्स का होता है और बीवोक 3 इयर्स का। और यहाँ पे और अच्छा ये चीज़ होता है कि आप एडमिशन लेने के बाद थियोरेटिकली क्लास के साथ साथ यहाँ पे क्लिनिकल पोस्टिंग भी होता है हॉस्पिटल में। जो इंस्टीट्यूट में जो थियोरेटिकली सिखा रहा है स्टूडेंट को भेजा जाता है हॉस्पिटल में क्लिनिकल पोस्टिंग, वो लोग वहाँ पे देखते हैं थियोरेटिकली जो कुछ भी सिखाते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल में देखते हैं, ठीक है। और आफ्टर थियोरेटिकल क्लास आई मीन थ्योरी क्लास कॉलेज खत्म करने के बाद उन लोगों को इंटर्नशिप कंडक्ट कराया जाता है। इंटर्नशिप कंडक्ट करने के बाद उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है स्टूडेंट को। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को 12 पास और होना चाहिए एनी स्ट्रीम से। अगर आप लोग कोई स्टूडेंट पैरामेडिकल में कोई कोर्स किया है, उस सर्टिफिकेट के लेने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो डिफरेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में, जैसे लैब में अप्लाई कर सकता है, लैब में जॉब कर सकता है, डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है। उस सर्टिफिकेट के थ्रू वो डिफरेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम लेके जाता है, गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट लेके जाता है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जैसे RRB का एग्जाम लेके आता है कभी कभी। अगर कोई स्टूडेंट आसाम गवर्नमेंट का है तो वहाँ पे आसाम गवर्नमेंट में भी डिफरेंट पैरामेडिकल का वैकेंसी लेके जाता है, वहाँ पे भी वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये ऐसा बहुत सारा सेक्टर है जहाँ पे वो उसका करियर वो कर सकता है। अभी फिलहाल 7 बैच का एडमिशन शुरू हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट पैरामेडिकल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आके एक बार विजिट करिए और अच्छे से देखिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि पैरामेडिकल में पढ़ने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, बाद में जाके एंट्रेंस वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, क्लियर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैरामेडिकल कोर्स नहीं कर सकते हो या पैरामेडिक्स बन नहीं सकते हो। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया को, रूल्स को फॉलो करके स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाता है। तो आप विजिट करके देखिए क्या क्या रूल्स होता है, उस रूल के मुताबिक हम लोग एडमिशन देते हैं स्टूडेंट्स को। थैंक यू।